Okay, Hare Krishna everyone. We'll just say quick Mangalacharan prayers before reading. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhaktvrinda. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे. Nibo. Okay, would you like to read, Mataji? हाँ माताजी. Devotional service is pure when one engages in the service of the Supreme Lord without any selfish motive and without being hampered by any material impediment. The pure devotee does not desire to live on the same planet as the Supreme Lord, nor does he desire the same opulences as the Lord, nor does he desire to have the same form as the Lord, nor to live with him side by side, nor to merge into his existence. Even if the Lord offers the pure devotee such rewards, he rejects them. The point is that a pure devotee is so much absorbed in the transcendental loving service of the Lord that he has no time to think of any benefits beyond his immediate engagement. Just as an ordinary materialistic businessman thinks of nothing else when he is absorbed in his business, a pure devotee, when engaged in the service of the Lord, does not think of anything beyond that engagement. Very- This was very self explanatory. One thing that I found was new to me was a pure devotee does not desire to live on the same planet as the Supreme Lord. बट हम ऐसे कितनी बार प्रे करते हैं ना कि वी वांट टू गो बैक टू गोलोका वृंदावन, तो भगवान तो वहीं पे रहते हैं. देन हाउ डू वी प्रे लाइक दैट? Mataji, this is referring to the 5 types of liberation. So, there are 5 types of liberation, right? Salokya, Samipya, Sayujya, right? हाँ. मुझे याद नहीं आ रही, मैं देख के बताती हूँ. तो जो सालोक्या होती है उसमें होता है कि that kind of liberation where one will get to live on the same planet as the Lord. और जो दूसरी लिखी है बात, desire the same opulence as Lord. Do you remember any श्लोका माता जी? मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, I can't find it. के ऊपर नहीं माता जी. I'll show you. मेरे को इसी यहीं पे ही है कहीं पे. Actually मुझे दिमाग से निकल गया एकदम number. Let me try some other one. तो सालोक्या वो होती है कि सेम प्लैनेट पे रहना. सामीप्या होती है कि शायद अकंपनी करना इन देयर लीलाज और समथिंग. और सायुज्य होती है जिसे ब्रह्मण्य फलजेंस में मर्ज होना. और एक होती है सेम ऑपुलेंसेस एंजॉय करना एज द लॉर्ड. ठीक है. तो इसमें जो ये दूसरी लिखी है कि ही डज नॉट डिजायर द सेम ऑपुलेंसेस. सो क्या ऐसा बोलते हैं ना कि व्हाट इज द गोल ऑफ प्योर डिवोटीज, which liberation do they want? There are 5 types of liberation, right? Which liberation do they want? और एक होती है to desire the same form as the Lord. एक होती है to live with him side by side, samipya. और एक होती है to merge into. तो 5 liberation थी. ये 5 liberations यहाँ पे mention की गई हैं. मतलब Prabhupada has not mentioned their Sanskrit names. He is just mentioning the English वो कि क्या होती हैं वो. तो जो प्योर डिवोटी होते हैं, they don't want any of these 5 liberations. जो भी सर्विस उनको भगवान देंगे उनको वो करना है, whether or not they get to. So same planet पे भी नहीं रहना उनको अगर कृष्णा बोलते हैं, जैसे कि महाप्रभु के शिक्षाष्टकम में आता है, ना धनम ना जन्म, राइट? ना सुंदरम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे. तो चाहे बार बार बर्थ एंड डेथ में भी आना क्यों ना पड़े, that is also okay. Like they don't want any kind of liberation, even if they have to come back. If it is the desire of the Lord, if he's putting them into a service for him, as long as they get the pure devotional service, they just want to come to serve him.
यहाँ पे प्रभुपाद ने सर्विस की इंपॉर्टेंस देखी है कि जो डिवोटी प्योर डिवोटीज होते हैं उनको कोई लिबरेशन नहीं चाहिए, उनको सिर्फ सर्व करना है कृष्ण को। तो मुक्ति, किसी भी तरह की मुक्ति से उनको कोई लेना देना नहीं है। Okay. माता जी लेट मी फाइंड Created such devotees, हाँ, Anna. इट कम्स समवेयर इन 9th canto आई फील। 9th canto. Okay. हाँ, लेकिन मुझे श्लोक का याद नहीं आ रहा। ये देखो 5 तो जी टाइप्स। आपने भागवतम भी पूरी पढ़ ली है? नहीं नहीं माता जी, मैं ऐसे इधर उधर से कई बार पढ़ते हैं ना, तो ऐसे पता मुझे। ये देखो ये तो भगवद गीता है। देयर इज नो वे आई कैन रीड भागवतम पूरी माता जी। ये देखो कितनी सारी जगह आ रहा है ना, ये 5 का सायुज्य, ये रहा, सालुक्य, हाँ। सारूप्य। सारूप्य मतलब सेम फॉर्म या opulences as the lord, सार्ष्टी एंड समीप्या। ठीक है, तो ये खोल के माता देख। जी कौन से कहाँ पे है ये मेंशन्ड? ये तो वाणी कोट्स होता है ना प्रभुपाद का। हाँ, अच्छा उसी पर इट्स नॉट, बट इट मस्ट बी स्पेसिफाइड ना कि कौन से कैंटो कौन सा श्लोक है। हाँ, तो इसमें जितने भी जैसे अगर आपने ये लिखा वाणी कोट्स में, तो ये जितनी भी जगह पे मेंशन्ड है वहां वो सारे आगे देखो, कैंटो 6, कैंटो 10, कैंटो 4 ये का अभी प्रभुपाद है का। ना डिसाइपल कोर्स में प्रभु ने भी बताया था ना कि आप ऐसे ढूंढ सकते हो। मैंने तभी से न्यूली ढूंढना शुरू किया है ऐसे, हाँ मुझे हाँ पहले हाँ हाँ, यस यू कैन, इसमें आप सर्च कर सकते हो और आ जाएगा। ये देखो ये लिखा है, सो मर्जिंग इनटू द ब्रह्मन, दिस इज कॉल्ड सायुज्या। सालोक्य मीन्स अटेनिंग द सेम प्लैनेट वेयर कृष्णा रिजाइड्स। ठीक है, सायुज्य हो गया मर्जिंग इनटू द एग्जिस्टेंस, है ना, और इम्पर्सनल ब्रह्मन एफल्जेंस। कैन यू सी, राइट? हम्म। तो सालोक्य माता हो जी गया सेम हम जो प्लैनेट। ऐसे प्रे करते हैं, वी वांट टू गो बैक टू गोलोका वृंदावन, दैट इज रॉन्ग मतलब? नहीं, हम इसलिए ऐसा प्रे नहीं करते कि वी वांट टू, मतलब इट इज नॉट रॉन्ग। तो इन I सब, teach her like one day we will have to go back to Goloka Vrindavan. Is that wrong? इट इज नॉट रॉन्ग, बट जो प्योर डिवोटीज होते हैं दे आर एट द मर्सी ऑफ कृष्णा, की हो सकता है वापस नहीं जाएं और कृष्णा विल पुट देम इनटू सम सर्विस। तो हाईएस्ट गोल तो देखो, हाईएस्ट गोल इन सब मुक्तिज में से हाईएस्ट गोल तो बैक, that is, so there are two types of goal, right? One is to merge into the existence of supreme, and the other is to go back to godhead. Between those two, going back to godhead is supreme. ठीक है ना? उन दोनों में से जैसे ये 5 टाइप्स में से सबसे बेस्ट है टू गो बैक टू गॉडहेड, है ना? तो हम ये कह रहे हैं कि हम एक पर्सनल फॉर्म ऑफ गॉड में बिलीव करते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड में, एंड वी विल गो बैक टू हिम एंड सर्व हिम, engage in a transcendental relationship with him, right? um, we do not believe in impersonal Brahman and we don't want to merge into him. तो उसके कंपैरिजन में से कहा जाता है कि गोइंग बैक टू गॉडहेड। लेकिन एक्चुअली हम लोग जब कहूट क्विज भी शुरू शुरू में हम खेलते थे, तो दिस यूज्ड टू बी ट्रिक क्वेश्चन कि एक्चुअली प्योर डिवोटीज का गोल क्या है। दे डू नॉट, सो दे, अतुल प्रभु भी ये पूछते थे क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी चाहिए डिवोटी को। तो द ट्रिक आंसर इज कि डिवोटी को इनमें से पांचों में से कोई भी नहीं चाहिए। डिवोटी को वो चाहिए जो कृष्णा को चाहिए, What a, कृष्णा को करना है उसके लिए। तो चाहे वो बार बार, तो एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट इज व्हाट चैतन्य महाप्रभु सेड कि मम जन्मनी जन्मनी ईश्वर है, कि चाहे आप मुझे बार बार बर्थ एंड डेथ में भी लेके आओ, बट इन योर सर्विस, राइट? yeah. कि मुझे आपकी भक्ति मिले चाहे बार बार जन्म भी लेना पड़े। So that is what Prabhupada is saying here, that it is pure when one engages in the service of Supreme Lord without any selfish motive. क्योंकि going back to Godhead is also like selfish motive, right? कि मुझे अपने आनंद के लिए वहां जाना है, right? कि अपने लिए जाना है, उसमें कृष्णा का क्या है? तो तो प्योर डिवोटी को उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। उसको ये चाहिए कि उसको सर्विस करनी है कृष्णा की, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो बार बार यहाँ की करनी पड़े। जैसे इसीलिए तो हम कहते हैं कि जितने भी ये जैसे प्रभुपाद हैं या कोई भी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हुए, सॉरी माता जी, आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा खराब है। आवाज आ रही है? हाँ।
तो जितने भी लोग हुए है ना प्योर डिवोटीज, इसीलिए तो उनको कहते हैं कि दे आर वैकुंठा मैन, दे आर सेंट बाय कृष्णा फॉर हिज पर्पस। कृष्णा ने उनको अपने काम के लिए भेजा है। मतलब उन्होंने जन्म लिया है हम लोगों को ताड़ने के लिए, तो वो कृष्णा की सेवा में यहाँ पे आए हैं। सो एक तरह से दे कम एंड सफर हियर फॉर आवर पर्पस। जैसे कि कोई भी हो गए, जैसे कि हरिदास ठाकुर हैं, है ना, कितना हाउ मच ही सफर्ड, या गोस्वामीज हैं, है ना, हाउ दे हैड टू वर्क अंडर अ मुस्लिम किंग एंड व्हाट नॉट। क्राइस्ट एंड जीसस क्राइस्ट, राइट। सो दीज आर ऑल मतलब पीपल दैट उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार चाहे उनको जन्म भी लेना पड़े, लेकिन वो आते हैं सर्विस करने के लिए, गॉड की सेवा के लिए। So they do not think of anything beyond that engagement. आगे पढ़े माता जी। हाँ। तो ये प्रभुपाद ने यहाँ पे ट्रिक यूज की है कि उन्होंने ऐसे मेंशन नहीं की 5 टाइप ऑफ डिवोशन, और उन्होंने आई मीन 5 टाइप ऑफ लिबरेशन, और उन्होंने बस इंग्लिश में ऐसे लिखा है। So Mataji, I'll continue reading, Mataji. One who possesses the symptoms described above has been elevated to the topmost position of devotional service, and it is by such transcendental loving service alone that one can surpass the influence of Maya and relish pure love of Godhead. As long as one desires material benefit or liberation, which are called the two witches of allurement, one cannot relish the taste of transcendental loving service to the Supreme Lord. Do you have any thoughts, Mataji, or should I continue? नहीं माता जी। There are 3 stages of devotional service. The first is the beginning stage of cultivation. The second is the realization of service. And the third is the supreme stage, is the attainment of love of Godhead. 3 stage bola hai sir. There are 9 different methods of cultivating devotional services: hearing, chanting, remembering, etc. And all these processes are employed by the neophyte in the first stage. If one is engaged in chanting and hearing with devotion and faith, his material misgivings gradually become vanquished. As his faith in the devotional service increases more and more, he becomes assured of a higher perfectional position. In this way, one becomes firmly fixed in the devotional service, increases his taste for it, becomes attached to it, and feels ecstasy, the preliminary stage of love of Godhead. Attainment in this of ecstasy is produced by executing this process of cultivating devotional service. When one continues the process of hearing and chanting, attachment to Krishna gradually thickens and at last is called love of Godhead. ये हम लोगों ने जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था माता जी, उससे रिलेट करता है ना, जो हमने स्टार्ट किया था श्रद्धा से गोes up till प्रेमा. यस माता जी। सो या 9 स्टेजेस होती है ना। हाँ, श्रवण. इसको कॉम्पैक्ट कर दिया है। इसको आई थिंक इसको ऐसे भी समझते हैं, आपको शायद पता होगा ज्यादा, इसमें आप बताइए। बट द इनिशियल स्टेज, बिगिनिंग स्टेज, जिसमें सिर्फ कल्टीवेट करते हैं, जिसमें डिसिप्लिन करके करते हैं, like you have to follow regulative principles, you have to really discipline yourself, है ना, when you are struggling, right? That is called वैदी भक्ति। यस माता जी. है ना। उसके बाद आता है जब आप को रियलाइजेशन होने लगती है और आप अपने गुरु की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हो, अनर्थ निवृत्ति, ऐसे राइट। तो वो यस. स्टेजेस आती हैं, एंड दैट इज कॉल्ड रागानुगा. रागानुगा भक्ति, राइट। यस माता जी. राइट, मतलब यस। एंड देन द लास्ट इज द प्रेमा, लव। Prema comes at the end after bhava, right? यस Yeah. मतलब, हाँ, भाव इज Here, लास्ट बट वन एंड here लास्ट। Shraddha is only not coming first step. तो श्रद्धा, अब मुझे याद नहीं आ रही सारी स्टेजेस, लेकिन ऐसे शुरू की जो पार्ट होता है उसको वैदी भक्ति बोलते हैं, फिर रागानुगा, और लास्ट में प्रेमा भक्ति। तो बोलना. जो रागानुगा और वैदी भी होती है, उनको कलेक्टिवली दे आर टुगेदर कॉल्ड साधना भक्ति, आई बिलीव। Is it? तो कहने का मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि इनिशियली यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग
या will- बेसिकली हर एक चीज में, जैसे माता जी वो भी बोलते हैं ना, एक आई थिंक भक्ति रसामृत महाराज ने बोला था या किसी ने बोला था, मुझे नहीं याद है, किसी लेक्चर में, कि हम हर एक चीज में जैसे प्रैक्टिस करते हैं, कितने लोग जो डिवोटीज जो, हाँ, जो कितने डिवोटीज होते हैं ना, वो पूछते हैं कि हमें 16 माला ही क्यों करनी है, हमें प्याज लहसुन ही क्यों नहीं खाने हैं। तो बेसिकली यू प्रैक्टिस टू बिकम एनीथिंग इन योर लाइफ. सो वंस यू practice, then only you can get perfection. So all these like regulative principles are more like practicing to get to that point. But here I'm Hmm. struggling in practicing only. Mataji, everybody, I think all of us Mataji, can in she the same boat. share the shloka of Shravanam? Yes, please. Ragunam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dapsam Sakyam Atmani Vedanam. Very good. Wow, Hari Bol. Radhe, do you know who said that shloka? Prabhupada. Huh? That shloka was said by Prahlad Maharaj to his father Hiranyakashipu. Yeah. Will you play Prahlad Maharaj next time? Huh? Okay. Make daddy Hiranyakashipu and you can be Prahlad Maharaj. Yeah? Okay. That'll be a fun drama. Okay. Okay. Who will be Wow, nursing the beautiful. day? Who will be? Oh, I think mommy can be nursing Dev. Hmm. Yeah? Yeah, Hmm? that would be nice. And you pick a pillar in But the house. But what about the little one? Little one. Okay, little one can be one of the One of your disciples. friend. Yeah. She can be a friend, Prahlad Maharaj's friend, who is teaching him about Vishnu, Krishna. Hmm. ठीक है, we will read. Okay, beta? You listen. ठीक है. Mataji, do you want to continue? Sure, Mataji. In the stage of transcendental love of God, there are further developments known as transcendental affection, emotion, ecstasy, and extreme and intense attachment. These are technically known by the terms rag, anurag, bhav, and mahabhav. तो माता जी ये प्रेम भक्ति के आगे हैं स्टेजेस जो हमने अभी तक कहीं ज्यादा नहीं पढ़ी. आई थिंक उसमें भागवतम में थोड़ा सा शायद था कहीं पे. हाँ, मैंने नहीं पढ़ा है माताजी, मैंने ये वर्ड सुने हैं पर मैंने इनके बारे में कभी नहीं पढ़ा है. तो ये है राग मीनिंग अफेक्शन. राग अनुराग we have done. हाँ, अनुराग emotion, bhav and mahabhav. Bhav is ecstasy and extreme and intense attachment is mahabhav. The progress from one stage to another is like thickening of the sugarcane juice. In the first stage, sugarcane juice is a thin liquid. When by evaporation it becomes thicker and thicker, it turns into molasses. Then it turns into granules of sugar, then rock candy, and so on. Just as sugarcane juice progresses from one stage to another, similarly, transcendental love for the Supreme Lord develops by stages. So, here Prabhupada has given such a nice analogy of how the sugarcane juice is being thickened. तो पहले वो बिल्कुल लिक्विड होता है, फिर वो थिक होते रहता है, फाइनली वो शुगर बन जाता है और फाइनली एकदम हार्ड होके ऐसे रॉक कैंडी बन जाता है. तो इसी तरीके से ट्रांसेंडेंटल लव जो है वो भी इंक्रीज होते रहता है by stages. When one actually becomes situated on the transcendental platform, he becomes steady. Unless one is so situated, his position is not steady and he may fall down. तो जैसे कि भरत महाराज का एग्जाम्पल आता है ना कि 9 प्रोसेसेस में 9 स्टेजेस में he was advanced to भाव भक्ति, भाव स्टेज लास्ट बट 1 और तब भी फॉल डाउन हो गया. तो इसलिए जो बिल्कुल प्रेम भक्ति है उसमें जाके फिर पर्सन स्टेडी होता है और फिर फॉल डाउन नहीं होगा. And then there is no fear of falling down. This stage is technically called स्थाई भाव. वो स्थाई हो जाएगा. There are further developments within this stage known as vibhav. उसके अंदर भी और developments हो सकती हैं. Anubhav, Satvika and Vyabhichari. When these 4 ingredients are added to the steadfast position of pure transcendental life, there is actually an exchange of rasa or transcendental mellows with the Supreme Lord. This exchange in loving reciprocation between the lover and the beloved is generally called Krishna Bhakti Rasa, the transcendental taste of exchanging loving sentiments between the devotee and the Supreme Personality of Godhead.
It should be noted, however, that the transcendental loving exchanges stand on the steadfast position of sthai bhav, as explained above. The basic principle of vibhav is sthai bhav, and all other activities are auxiliary for the development of transcendental love. ये बड़ा मुश्किल सा बात है. इसमें बेसिकली जैसे पहले देखो हमने शुरू किया, सब पहले तो ये हो गया 9 स्टेजेस है ना, श्रद्धा से शुरू हुए प्रेम भक्ति तक पहुंचे. ठीक है, तो प्रेम भक्ति पे कोई पहुंच गया, प्योर डिवोटी. अब प्रेम भक्ति के अंदर बहुत सारी स्टेजेस हैं. ठीक है, राग अनुराग है ना. राग अनुराग भाव महाभाव. फिर उसमें प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि वो वाला ये जो प्लेटफॉर्म है उसमें से कोई फॉल डाउन नहीं करता, वो स्थायी भाव होता है. वो ऐसा प्रेम वाला भक्ति वाला भाव ऐसा है. उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसको कुछ और भी नाम दिया गया है, विभाव, अनुभाव, सात्विका एंड व्याभिचारी. इसके बारे में ज्यादा बताया नहीं गया, इसलिए बताया नहीं कुछ. हाँ, तो ये कहीं और कभी आएगा. बट मेन बात ये है कि यहाँ इस लेवल पे आके तो स्थायी हो गया, तो वो कभी फॉल डाउन नहीं हो सकता. ये बेस लाइन है इसमें. तो इसलिए बेसिक प्रिंसिपल ये है कि स्थायी भाव है, उसको बोलते हैं विभाव. ठीक है, फॉल डाउन नहीं हो सकता, ये पता होना चाहिए. इसलिए प्योर डिवोटीज का हम कभी कहते हैं ना, उनका तो कभी फॉल डाउन होता ही नहीं. जैसे ना हम लोग, ये बताती हूँ आपको, भगवत गीता पढ़ रहे थे, उसमें वो श्लोका आता है 9th चैप्टर में, इफ यू रिमेम्बर, कि अपि चेत सुदुराचारो, है ना, कि जो चाहे कुछ गलत भी करे, सिंफुल भी हो जाए उससे, तो भी वो सिंफुल ऑफ द मोस्ट सिंफुल ऐसे कुछ है ना, दैट विल आल्सो एक्सेप्ट. दैट विल आल्सो, अगर वो कर रहा है इस प्रोसेस में, को फॉलो कर रहा है, तो अल्टीमेटली ही विल नॉट फॉल डाउन, ही विल कम बैक टू मी, ऐसे बोलते हैं कृष्ण. तो उसमें फिर ये लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, ओ अच्छा ऐसे कोई जो इतने बड़े बड़े साधु होते हैं, ये लोग गलत काम करते हैं, राइट. तो फिर उनको ये समझाना पड़ता है कि ये उन लोगों के लिए, प्योर डिवोटीज के लिए नहीं है. अगर कोई किसी का फॉल डाउन हो रहा है, वो सिन कर रहा है, कुछ कर रहा है, देन ही इज नॉट अ प्योर डिवोटी. पहली बात तो प्योर डिवोटी तो वो है जिसका फॉल डाउन हो ही नहीं सकता. जैसे ये देखो यहाँ लिखा ना कि सब बेसिक प्रिंसिपल इज स्थायी भाव. तो ये तो स्ट्रगलिंग डिवोटीज के लिए है, नए जो शुरू में वैधि भक्ति या उसमें है, when they are following discipline, तब उनका fall down हो सकता है, because they are partly in Maya, partly in partly following Krishna consciousness. So then they can have a fall down. But जो हमेशा ही Krishna consciousness में है, वो pure devotee है, वो हमेशा ही transcendental platform पे है, तो उसका fall down नहीं हो सकता. इसलिए प्रेम भक्ति में एक बार कोई पहुंच गया, तो फिर वो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया, ही इज बियॉन्ड माया. तो यार हमने NOI पढ़ा था, तब स्टार्टिंग के चैप्टर्स में भी एक जगह पे मेंशन था कि जो मध्यम अधिकारी होते हैं, दे आर आल्सो सिचुएटेड वेरी फर्मली एंड दे नेवर फेस फॉल डाउन. नहीं, हाँ ऐसा बोलते हैं, लेकिन इट्स अबाउट उत्तम अधिकारी, दैट will never have a fall down. मध्यम का ऐसे है, मध्यम का था कि he understands this, he can differentiate with different kind of people and he has the क्योंकि पता नहीं एक्चुअली हम लोगों को जो नोट्स भेजे थे ना, उसमें लिखा था जो कनिष्ठ अधिकारी थे, उसके कंपैरिजन में लिखा था कि he does not fall down. हाँ, मतलब he is very much firmly situated, लेकिन उसके कंपेयर टू उत्तम अधिकारी तो उसकी पोजीशन बहुत लो है ना, तो he is not completely transcendental. So we cannot call मध्यम अधिकारी in स्थायी भाव, because ये यहाँ पे ऐसे लिखा है स्थायी भाव, तो just thought कि मध्यम अधिकारीज are also very firm. मध्यम अधिकारीज are very firm. उनका इजीली नहीं होगा, जैसे कि जो न्योफाइट है उसका तो they are like very easily distracted and deviated. They are very much in struggling position. So they are thoroughly struggling with their senses and with material allurements all the time. तो मध्यम वाले को काफी पता है, तो वो बहुत अच्छे से कृष्णा कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड है, तो उसका फॉल डाउन होना आसान नहीं है. लेकिन उत्तम अधिकारी का तो हो ही नहीं सकता. वो तो ट्रांसेंडेंटल है. तो ये बात इसमें क्लियर हो रही है.
एंड दूसरी बात इसमें ये क्लियर हो रही है कि जब वो ऐसे ट्रांसेंडेंटल हो गया तो वो अब रसाज एक्सचेंज कर रहा है, जो हम पढ़ते हैं कई बार रसाज, राइट। और ये भी हमने बात की है इस बारे में कि रसाज आर को unless you have that realization it's very difficult to describe them and discuss them, क्योंकि किसी भी मटेरियल चीज से कंपेयर नहीं कर सकते उसको ज्यादा से ज्यादा आप अपने रिलेशनशिप से कंपेयर कर सकते हो कि ओके वात्सल्य भाव लाइक पेरेंटल लव बेसिक है, अंडरस्टैंडिंग। हाँ, हाँ, या कॉन्जुगल है तो माधुर्य है, वीर है, तो ये ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, बट बहुत अच्छे से समझ नहीं सकते बेस्ड ऑन दैट। एंड we know that everybody has different type of rasa they exchange with the Supreme Lord based on their relationship. Rakshita Mataji, are you there? यस माता जी मैं सुन रही हूँ। मैं अच्छा, एक्चुअली ये स्थाई भाग जो आपने पढ़ा वो तो समझ गई, लेकिन अभी भी मुझे ना पूरी स्टेजेस में बहुत कंफ्यूजन हो रही है। लाइक वैद्य भक्ति से, रागानुगा से, फिर प्रेम भक्ति से, फिर स्थाई। सो या तो इसका कोई चार्ट है तो आप भेजोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बीच बीच में बहुत कंफ्यूजन हो रही है। Yes, Mataji, it नहीं, is very ये बात confusing. करते हुए ना ये तो पता चल रहा है अच्छा स्थाई भाव, लेकिन अगर कोई पूछे स्थाई भाव से पहले तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ हाँ, देखो तो उसका कोई चार्ट अगर एक तो आपको 9 stages of devotional service तो पता है, राइट? वो पता है माता जी। हाँ जी, है ना, उतना ही हमको पता है। बाकी वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति का थोड़ा सा पता है। ये क्या हो गया? वैदी भक्ति होती है जो इनिशियल होती है, जिसमें लोग अपने आप को जैसे फोर्स करके रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स वगैरह फॉलो करते हैं, राइट? जिसमें मैं हूँ वो। हाँ, हम सारे मैं नहीं हूँ, ये ऐसे लगा लो कि हम सभी हैं, मतलब बेसिकली न्यू लोग, राइट, न्यू पीपल, इसमें कोई वो नहीं है। वी आर ऑल जस्ट लर्निंग एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड समथिंग समवेयर। तो वो वैदी भक्ति होती है माता जी। और ये उसके देखो, बाद वैदिक भक्ति आती है मीन्स सर्विस रागानुगा। अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। हाँ ठीक है। और रागानुगा हो गई उसके बाद, कि जैसे धीरे धीरे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर करके आप शुद्ध हो जाओगे, और शुद्ध होके फिर आप स्पॉन्टेनियसली प्रैक्टिस करोगे। ये तो देखो माता जी जैसे ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल तो कर ही रहे हैं हम, मैं तो कर रही हूँ, मतलब फॉलो कर रही हूँ, तो लेकिन शुद्ध तो नहीं हुई। नहीं, फिर अभी तो माता जी मतलब अभी बहुत भी अपने टाइम आप को लगेगा। इतना पुश करना पड़ता है, फिर भी मतलब अंदर से तो होता ही है ना, लेकिन मतलब अभी हम रागानुगत पे तो पहुंचे नहीं ना। माता जी इट इज अ वेरी हाई प्लेटफॉर्म, सो डोंट वरी। आप बेसिकली आप ये लगा लो कि हम न्यू, आप ये कह रहे हो कि नियोफाइट से मध्यम अधिकारी बनने वाली बात कि वो तो बहुत दूर है अभी। तो हम तो अभी ठीक है, ट्राई कर रहे हैं। ये देखो, ये लिखा है डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना, वैदी भक्ति। ओके। और इन दोनों को कंबाइन करके शायद, हाँ, इन दोनों को कंबाइन करके कहते हैं साधना भक्ति, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वैदी भक्ति एंड रागानुगा भक्ति। तो सो वैदी रागानुगा भक्ति, भक्ति में आप माता जी पहले तो वैदी भक्ति में तो आप अपने आप को कोशिश कर रहे हो, रेगुलेटिव, रागानुगा में हाँ, आपका वो प्रैक्टिस बन जाते कि भाई ये तो करना ही है। फिर जब ये स्पॉन्टेनियसली। देखो दोनों माता जी, स्पॉन्टेनियस हाँ, वर्ड इम्पोर्टेंट है, अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ता। माता जी जैसे रागन है ना, एक लेक्चर में है ना, उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल दिया था कि जैसे जैसे अभी छोटे बच्चे हैं तो हम इनको सुबह उठ के बोलते हैं चलो बेटा अभी ब्रश करो, अभी ड्रेस चेंज करो, तो वी टेल देम देयर स्टेप्स एंड दे कीप डूइंग इट, दे फॉलो अस। बट व्हेन वी आर देयर वी हैव प्रैक्टिस्ड इट ऑल आवर लाइफ सो वेल कि सुबह उठ के किसी को आके मुझे ये नहीं कहना पड़ता कि जाओ अभी तुम ब्रश करो, तुम ना, दिस इज स्पॉन्टेनियस ना, आपको पता होता है कि मेरे को अब क्या करना है। तो वो ऐसे मैंने अपनी दिनचर्या के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी, जब हम बचपन से कैसे बड़े होते हैं वैसे वैदेही gets like gradually goes towards spontaneous. माता जी आप ये लाइन पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा ये वाला लाइन। okay. Vaidehi bhakti means service according to regulative principles. Raganuga refers to the point at which by following the regulative principles one becomes a little more attached to Krishna and execute devotional service out of natural love. Little more attached. Okay. ठीक है ना, अपने आप करेगा वो, जैसे कि उसको सोचना नहीं पड़ेगा वो डीटी वर्शिप करनी है, ओ नो सुबह उठ के 16 माला करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है, उसको अपने आप मन करेगा करने का।
ओके माता जी, अब हो गया ये क्लियर। और रागानुगा के बाद कौन सा है स्टेज माता जी? भाव, सबसे हाईएस्ट प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति। तो प्रेम भक्ति जो है वो फिर उसके आगे आगे प्रभुपाद ने, और एक्चुअली दिस इज चैतन्य महाप्रभु गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू रूप गोस्वामी। तो माता जी ये भी है वैदिक भक्ति और साधना भक्ति, इट्स द सेम थिंग, रागात्मिका भक्ति। ये भी ऐसा, हाँ, एक और है टर्म रागात्मिका भक्ति। फिर है रागानुगा भक्ति। रागात्मिका में क्या डेफिनेशन है माता जी इसकी? थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। रागात्मिका में माता जी वो ऊपर चला गया। Ragatmika bhakti comes naturally if the devotee is free from material contamination. This is the only condition. So Ragatmika से पहले My God, मुझे तो लग रहा है VRC ले लूंगी मैं तो वैदिक भक्ति। हरि बोल। हरि बोल जी। तो डोंट वरी, ठीक है, ये इतना समझ आ गया बेसिक बात, तो ठीक है। अब आ गया समझ माता जी। अब तीनों बहुत अच्छे से समझ आ गए एक्चुअली मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई अब कि ये रागात्मिका कहाँ से आ गया। माता जी बुक्स में कहीं पे भी मेंशन तो नहीं। माता जी हाँ। जैसे वैदेही उसमें वैदी भक्ति एंड साधना रागानुगा, भक्ति हाँ। सेम स्टेज है, क्योंकि उसमें साधना साधना कर रहे हो। साधना रागात भक्ति कई बार माता जी दोनों को कहते हैं, वैदी प्लस रागानुगा इज कॉल्ड साधना। मोस्टली जगह पे तो ऐसे लिखा होता है। माता जी ये जो वेबसाइट है krishnatoday.com, मतलब ये अपने इस्कॉन से रिलेटेड है, तो आई गेस वी विल गेट बेटर टर्म्स इन दिस। कृष्णा टुडे कई बार है ना, काफी और बहुत राइट डिस्क्रिप्शंस दिए रहते हैं जो हमने कभी पहले पढ़े ही नहीं होते हैं। राइट राइट माता जी। राइट। और इसमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ना कि अगर किसी को बताना भी हो तो यहाँ से ढूंढ के बता सकते हैं। करेक्ट। तो ठीक है, प्रिंसिपल समझने की बात है मेनली तो, कि भाई ठीक है, शुरू में रेगुलेटिव होती है, बाद में स्पॉन्टेनियस, और बहुत हाई लेवल पे प्रेमा भक्ति होती है। दैट इज द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, और फिर उसके आगे अंदर बहुत चीजें दी गई है माता जी, विच सो मेनी टर्म्स दैट वी डोंट अंडरस्टैंड, बट मेन थिंग वी अंडरस्टूड वाज कि बहुत हाई लेवल प्रेम लेवल पे पहुंच के पर्सन डजंट फॉल डाउन एंड दे एक्सचेंज रसas विद द सुप्रीम पर्सनालिटी। यस माता जी, वो अब हो गया इसमें। आप यहाँ से पढ़ोगे? मैं पढ़ती हूँ। The ecstasy of transcendental love has two components, the context and the cause of the excitement. The context is also divided into two parts, the subject and the object. The exchange of devotional service is the subject and Krishna is the object. His transcendental qualities are the cause of excitement. This means that a devotee who becomes enamored by the transcendental qualities of Krishna becomes excited to serve him. The impersonal Mayavadi philosophers say that the absolute truth is nirguna, without qualities. But the Vaishnava philosophers say that the absolute truth is described as nirguna because he has no material qualities. Very well. This is not to say that he has no spiritual qualities. Indeed, the Lord's spiritual qualities are so great and so enchanting that even liberated persons become attracted to him. This is explained in the Atma Ram verse of Srimad Bhagavatam 1.7.10, where it is said that those who are already situated on the platform of self-realization are attracted by the transcendental qualities of Krishna. This means that Krishna's qualities are not material but are pure and transcendental. Okay. तो जो ecstasy of transcendental love के दो component है, subject, cause and excitement. तो cause है कृष्णा की लीलास of the excitement. Okay. And the context is also divided into two parts, the subject and the object.
So the subject is the devotional service of the Lord and Krishna is the object. और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो मायावादी होते हैं वो कृष्णा जो इम्पर्सनल मायावादी की जो फिलॉसफी होती है भगवान के लिए वो होती है निर्गुणा, दैट मीन्स विदाउट क्वालिटीज। वेरएज जो वैष्णव फिलोसोफर्स होते हैं उनकी वो बोलते हैं कि भगवान निर्गुण हैं, लेकिन वो निर्गुण इसलिए है कि उनमें कोई मटेरियल क्वालिटीज नहीं है। बट मटेरियल क्वालिटीज नहीं है इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि उनमें स्पिरिचुअल क्वालिटीज नहीं है। इंडीड जो लॉर्ड की स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं वो तो इतनी ज्यादा ग्रेट हैं कि जो लिबरेटेड पर्सन्स होते हैं, जो ऑलरेडी ट्रांसेंडेंटल लेवल पे होते हैं, वो भी भगवान की स्पिरिचुअल क्वालिटीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये फिर आत्माराम वर्स है 1.7.10, ये तो फिर हमने अभी पढ़ा ही होगा। याद है माता जी, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था आत्माराम वर्स। दिस इज जो प्रभु ने किया था ना माता जी। हाँ, जिसमें हर एक वर्ड पे प्रभुपाद ने ऐसे दिया है पट में। राइट। वन जिस पे चैतन्य महाप्रभु ने पूरा उसको किसके साथ हुआ था उसका उनका वो डिस्कोर्स एंड ही केशव कश्मीरी था शायद। हाँ, केशव कश्मीरी से भी हुआ था और उसके बाद वहां पे भी हुआ था बनारस में किसी से, मायावादी, नाम भूल गई। चांद काजी नहीं, चांद काजी से तो माता जी वो उसने तो संकीर्तन को अपोज किया था। अच्छा, हाँ, केशव कश्मीरी था जब वो हुआ था कि he gave so many meanings of this verse and then he also refuted them completely. माता जी वो बृहस्पति का कौन फॉर्म लेके आए थे? सर्वभौम भट्टाचार्य। जिसमें उन्होंने पहले बहुत देर तक प्रीच किया था, फिर हाँ, सर्वभौम भट्टाचार्य ने उनको 7 days तक पूरा सिखाया था, बट ही वाज टीचिंग इम्पर्सनल वेदांता फिलॉसफी। और फिर महाप्रभु ने कहा था कि ये ऐसे लग रहा है कि जैसे सन जो है वो क्लाउड से ढका हुआ है। I think we need to write down the names of these main personalities from Chaitanya Mahaprabhu's Leelas, क्योंकि confuse होते रहते हैं। मैं लिख दूंगी माता जी, मेरे नोट्स बच्चे भी हैं, मैं उसमें सबके नाम, क्योंकि मैं खुद ही भूल जाती हूँ। मैंने ना, अब देखो ये भी गुम हो गया मेरा रीड करने वाला, कहाँ से रीड करना है यहाँ इसे। तो इसमें एक बात ये थी निर्गुण वाली, ये क्योंकि पॉइंट बहुत आता है। तो यस, जो इम्पर्सनलिस्ट है वो तो ये बोलते हैं राइट कि निर्गुण का मतलब जिसकी कोई क्वालिटीज ना हो, राइट, निर्गुण। और हम बोलते हैं कि कोई बोलेगा फिर भगवान को निर्गुण कैसे बोल सकते हो तुम तो कह रहे हो कि उनकी इतनी नेम, फॉर्म, क्वालिटीज, पास टाइम्स हैं। तो एक तो ये मीनिंग होता है कि हम कह रहे हैं कि उनकी कोई मटेरियल क्वालिटीज नहीं है, बट ही हैज इनन्यूमरेबल इन्फिनिट स्पिरिचुअल क्वालिटीज, है ना। ये तो भगवान ने खुद ही भगवत गीता में बताया कि देखो जरा मेरे ऐश्वर्य को देखो, ही सेज in 10th chapter, right? Look at all my opulences, the opulences of the absolute. तो फिर निर्गुण कैसे हुए? तो निर्गुण का एक तो ये होता है कि no material qualities, और दूसरा ये मतलब होता है कि जो he is beyond the 3 gunas of material nature, क्योंकि गुण जो होते हैं वो material qualities हैं, right? 3 gunas give us the qualities, है ना। हम लोगों में जो क्वालिटीज आती हैं वो उन मोड्स की वजह से आती हैं, 3 मोड्स की वजह से। किसी में पैशन, इग्नोरेंस, गुडनेस, बिकॉज ही इज बियॉन्ड द 3 गुनास, बिकॉज ही इज ट्रांसेंडेंटल, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड निर्गुणा। सो निर्गुणा कैन आल्सो बी यूज्ड इन एक्सचेंज ऑफ transcendental actually. So even when he comes, he is not affected by the 3 modes of material nature. That is another understanding of this word. Right. And ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा आता है। ये वाला पॉइंट इट्स एक्चुअली वेरी नाइस पॉइंट कि जो लोग ऑलरेडी इतने आत्माराम होते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, सेल्फ रियलाइज्ड होते हैं, उन लोगों को किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, राइट। उनको कोई भी चीज अल्योर नहीं कर सकती, इस दुनिया की ब्यूटी, उन लोगों को कोई खाने की चीज, सुनने की चीज, देखने की चीज, फील करने की, किसी भी चीज से कोई अल्योरमेंट नहीं है। येट उनको ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ कृष्णा से अल्योरमेंट हो रही है, उनसे अट्रैक्शन हो रही है।
तो वो चीज कितनी बड़ी होगी, कितनी वो क्वालिटीज होंगी उसमें जिससे उन आत्माराम लोगों को एल्योरमेंट हो रही है, जिनको इस दुनिया की किसी चीज से एल्योरमेंट नहीं हो रही। हम लोगों को तो ऐसे छोटी मोटी बेकार की चीजों से भी हो जाती है अट्रैक्शन, और उनको इन सब से किसी चीज से नहीं हो रही, तो जिस चीज से हो रही है वो चीज कितनी ज्यादा अमेजिंग होगी। तो दैट आल्सो टेल्स अस अबाउट द अमेजिंग ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ कृष्णा। तो ये भी एक राइट माता जी। आगे माता जी कुछ ऐड करना आपको? बस माता जी। अच्छा, आगे आप करेंगे माता जी? रक्षा माता जी करेंगे? हरे कृष्णा। Thundering, yawning, breathing heavily, forgetting social conventions, drooling, laughing, shaking and the head, and what is this? Hiccoughing. Okay. And all these symptoms are not awakened simultaneously. They appear according to the exchange of transcendental mellows. Sometimes one symptom is prominent and the other time another is prominent. Haribol. All right. This reminds me, प्रभु जी वो शेयर करते हैं ना कि एक बार ऐसे कोई बहुत प्योर डिवोटी थे वैष्णव, वो कहीं ऐसे पब्लिक में बैठे थे और कोई बात उनको कोई ऐसी लीला भगवान की याद आई, तो पता नहीं वो कोई भजन सुन रहे थे, वो ना एकदम एक्सटेसी में चले गए और वो रोने लगे, उनके आंखों से ऐसे पानी निकलने लगा। तो कोई और भी उनको देख के ना ऐसे कि अगर ये ऐसे कर रहे हैं ना तो मैं भी ऐसे करता हूँ। तो एक बार ऐसे किसी ने किया तो उसको लोगों ने बहुत मारा क्योंकि उसने शायद कुछ गलत कर दिया था कॉपी करने के लिए। तो इसमें बता हरिदास रहे हैं ठाकुर के साथ हुआ था माता जी। यस, कि ये ना somebody was copying हरिदास ठाकुर। यस, राइट। फिर उन्होंने बोला कि तुम इतने ग्रेट वैष्णवा को ऐसे कैसे कॉपी कर रहे हो। जैसे हम कभी कभी देखते हैं ना कि जैसे ये सिम्टम्स होते हैं भगवान के, मेरे को तो वैसे ज्यादा ऐसे तो मैंने किसी को भी इतना डिवोटी तो नहीं देखा, बट इंडिया में आपने देखा होगा ना कि जब कभी कभी माता के कीर्तन नहीं होते थे जगराते, उनमें कोई कोई को ऐसे माता आ जाती थी, तो उसमें काफी सारे सिम्टम है जो देखने को आते थे, है ना? यस होते नहीं माता जी की। तो मैं तो डर जाती थी, उस कारण नहीं भी जाती थी क्योंकि मुझे टेंशन हो जाती थी। मुझे लगता था वो मुझे टच करेंगे तो मैं भी ऐसे ही करने लगूंगी, तो मैं मम्मी के साथ नहीं जाती तो वो करते थे ऐसे ना। एक आंटी हमारे मंदिर के पुजारी की वाइफ थे, वो कोई भी कीर्तन होता था ना वैसे इसमें से काफी कुछ करने लग जाते थे। ऐसे एक प्रभुपाद के टाइम की भी बात है ना, एक डिवोटी आ गया था, मतलब कोई ऐसे आ गया था, वो हर रोज आता था कीर्तन में, और वो ऐसे करता था, कुछ कुछ चीजें सिम्टम्स डिस्प्ले करता था, और बहुत न्यूसेंस टाइप क्रिएट करता था। तो जो डिवोटीज थे या प्रेसिडेंट था टेम्पल का, उन्होंने लिखा प्रभुपाद को कि प्रभुपाद ऐसे कोई आ गया है, ऐसे करता है वो। तो प्रभुपाद ने कहा उसको उठा के बाहर फेंक दो, तो उसको उठा के क्योंकि ये जो सिम्टम्स होते हैं typically they are not displayed in public, like जैसे हरिदास ठाकुर हुए, या they don't display these ecstatic symptoms in public, like they'll या अपनी बिल्कुल intimate association में या बिल्कुल अकेले में, तो ऐसे पब्लिक में they will never display। तो अगर कोई ऐसे कर रहा है तो that is not really an advanced devotee। माता जी हमने शायद थोड़े दिन पहले कहीं पे पढ़ा था कि एक कोई कीर्तन था, जब वो प्रभुपाद कर रहे थे, तो उसकी फर्स्ट 2 लाइंस गाने के बाद में he went into that mode of ecstasy and then he kept quiet and then he was tearing, but then he came back in some time and then he did not even talk about it, he said just let's chant Hare Krishna। So उसमें फिर डिस्क्रिप्शन में लिखा था नीचे कि this is how great devotees are, they do not portray it in public to show it off। आपके वो इंसिडेंट से मुझे भी एक याद आया, चैतन्य ने मुझे बताया था कि एक बार एक डिवोटी थे जो प्रभुपाद के पास आके चैंटिंग करते थे और खूब जोर जोर से करके चैंट करते थे, और फिर बोलते थे मुझे दिख रहा है प्रभु जी, मुझे एक लाइट दिख रही है, एक मुझे लाइट दिख रही है, बहुत अच्छी लाइट। तो फिर प्रभुपाद उनको कहते थे अच्छे से चैंट करो, तुमको लाइट नहीं दिखेगी बंद हो जाएगी। ये मतलब हाँ, तो वही चैंटिंग पे अपने अमोघ लीला प्रभु का देखा था माता जी, जो उन्होंने गाजियाबाद में किया था।
नहीं। कहते कुछ लोग ऐसे चैंटिंग करते हैं, कहते आपको ऐसे भी नहीं करनी, तो बताते आपको ऐसे करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। तो वहां पब्लिक बैठी थी, उनको ही ऐसे बता रहे, तो कहते कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी चैंटिंग छोड़ के, कि आप तो बहुत एडवांस है और दूसरे बोले ढंग से करो, ढंग से करो, अपनी चैंटिंग बीच में छोड़ के, अरे अरे आंखें बंद है तुम्हारी, थोड़ा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। तो इतना फनी था ना कि ये सब नहीं करना है आपको, अपनी चैंटिंग पे ध्यान देना, आपसे दूसरे को थोड़ा बता ही सकते हम्म। यस माता जी। अच्छा, एक हमने अभी ये सुना था, इफ यू रिमेम्बर, रूप गोस्वामी का इंसिडेंट, राइट, जो अतुल प्रभु ने बताया था, कई बार बताया उन्होंने, राइट माता जी। है ना, कि वो लीला में प्रवेश कर गए थे, जिसमें वो राधा रानी को है ना, कृष्णा ने डाल खींच ली थी, तो राधा रानी भगवत ऊपर गीता लटक में गई थी। बताया था ना सुबह वैष्णव अपराध के लिए। हाँ हाँ, वो ऊपर लटक गई थी, तो रूप गोस्वामी के स्पॉन्टेनियसली हंसी निकल गई, है ना, तो उनकी हंसी निकली, तो कोई वैष्णव जो है वो ऑफेंड हो गया कि ये शायद मेरे ऊपर हंस रहे हैं, बट वो तो स्पॉन्टेनियसली ऐसे हुआ, लेकिन टिपिकली हाँ, कोई भी जो इतना हाई स्टेज में है, एडवांस्ड, वो ऐसे शो नहीं करेंगे। राइट। मेरे को माता जी वाले पे हंसी आ रही कि मुझे लाइट दिख रही है, ढंग से करो तो लाइट दिखेगी। से चैंटिंग करो तो लाइट। प्रभुपाद का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना शार्प था, वो सच एन इंटेलिजेंट मैन, हाँ कि वो है ना किसी भी नॉनसेंसिकल बात हाँ, लिए अच्छे से रिफ्यूट करते थे। मैं अगर किसी से कोई बात करूं और मुझे किसी को रिफ्यूट करना है, तो उसका जवाब मुझे 3 दिन बाद आता है, वही उस टाइम पे तो मैं है ही हो जाती हूँ। तो माता जी, ऐसे ही हम सबका, वो तो फिर बिल्कुल ही इज, यू नो, कितना तुरंत वो जवाब देते थे। एंड मैं कितनी बार ये इमेजिन करती हूँ ऑल दिस, लाइक अगर आप हम उनकी कुछ कुछ इंटरव्यूज पढ़े, जैसे रक्षिता माता जी, हमने वो जो बुक भी पढ़ी थी, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट, वो कितनी जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट ही वाज लाइक एटलीस्ट 75 76 एट दैट टाइम। राइट राइट। हमें, और मैं एट द मेमोरी एज ऑफ कितनी शार्प है। 34, हाँ, एट द एज ऑफ 34 मुझे मेरे आधे परिवार के लोगों के नाम नहीं पता, एंड ही न्यू सो मच एट दैट एज, ही वाज सो शार्प। इवन वो, मतलब उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे, अगर आप उनके इंटरव्यूज देखो, या इवन परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि अगर आप सोचो, विल बी स्टम्प्ड कि क्या बोले, एंड ही आंसर्ड इन सच अ वे कि उन्होंने कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं, जैसे क्रिश्चियन पूछ रहा है अगर उनसे, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, जैसे कि कोई स्क्रिप्चरल वॉर नहीं शुरू कर देंगे वो, कि तुम्हारे में ये लिखा है, हमारे में ये लिखा है, देखो ऐसे ऐसे, ऐसे आंसर करेंगे कि अपना सारा एक्सप्लेन हो जाए और दूसरे का भी ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करनी पड़े। Yeah, very तो nice. हाँ, उनका तो, चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ Yes, Mataji. कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। There are 5 transcendental rasas or mellows. The initial stage is called Shantarati, wherein one who is liberated from material contamination appreciates the greatness of the Supreme Personality of Godhead. One who attains this stage does not exactly engage in transcendental loving service of the Lord, for this is the neutral stage. In the second stage, which is called Dasyarati, a person appreciates his position as being everlastingly subordinate to the Supreme Lord, and he understands that he is eternally dependent on the causeless mercy of Supreme Person. At that time, there is an awakening of natural affection, such as is felt by a son who grows up and begins to appreciate his father's benedictions. At this stage, the living entity wants to serve the Supreme Lord instead of serving Maya illusion. Dasyarati. Should I keep continuing or do we want to discuss anything? तो माता जी, इसमें तो बस वही बताया ना, शांत रस और दास्य हाँ, रस, है ना? शांत रस and दास्य रस का है. You want to go down with Papa? Papa is there. Okay. The third stage in the development. Mataji, इतने first वाले में लिखा है, one who attains this stage does not exactly engage in the transcendental loving service of the Lord, for this is the neutral stage. So the one who's in the initial stage is not engaged in the transcendental loving service of the Lord. More of appreciating कि हाँ भाई, जैसे मतलब कि वाओ, ऑ में, रेवरेंस में, है ना? तो इसमें वैसे शांत रस में एग्जाम्पल तो दिया जाता है जो पैराफ्रेनेलिया होते हैं, है ना, सारे पेड़ अ, पौधे जो पेड़ होते पौधों का, सर्व धाम करते का, मृदंग हो गई, या जो भी ये
ऑल्टर की चीजें होती हैं, राइट? बिकॉज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरीथिंग इज अलाइव, नथिंग इज Yeah. मतलब स्थिर भी है तो भी अलाइव है, तो वो जस्ट इस तरीके से सर्व कर रहे हैं। Yes, ma'am. Thank you. आई थिंक किसी डिवोटी का एग्जाम्पल भी आता है, आई एम फॉरगेटिंग द एग्जांपल्स, मे बी इट विल कम लेटर, कि किसको शांत रस में बोलते हैं, किसी डिवोटीज का भी आता है एग्जाम्पल, राइट? माता जी जैसे अपने बलराम का पांचों रस में आता है, हाँ, बलराम को पांचों में आता है, यस। is there in, but I don't know any पर other. उनका पांचों में इसीलिए आता है कि शांत रस में ही इज द वृंदावन धाम, ही इज द मृदंग, ही इज द Yeah, he's like ऑल्टर। हाँ, everything. तो पहले Balram पहले- ji is the expansion. Yes, Mataji. हाँ, Yeah. या ठीक है। The और third, sorry. मैं यही कह रही थी, दास्य में तो जैसे हनुमान जी का काफी ज्यादा आता है, और भी बहुत जितने भी राम जी को लॉर्ड राम को सर्व करते थे वो जैसे दास में करते थे। लक्ष्मण ने भी उन्हें सर्व किया था, तो वो भी उसमें आते हैं। वैसे ही भरत और शत्रुघ्न भी आते हैं, बट हाँ, whoever served, ऐसे तो रामायण से अपन काफी सारे जैसे यहाँ पे हाँ, लिखा है लॉर्ड ना राम की माताजी, सर्विस में ज्यादातर दास्य रस में आते हैं। yes, awakening of natural affection, तो जिसका बड़ा natural affection रहता है भगवान के साथ, forcefully नहीं, तो वो सब दास्य रस में है। चलिए, The third stage in the development of transcendental love is called Sakhyarati. In this stage, one associates with the Supreme as a friend or an equal level, on an equal level with love and respect. At this stage is further developed, there is joking and such relaxed exchanges as laughing. On this level, there are fraternal exchanges with the personality of Godhead, and one is free from all the bondages. One forgets his inferior position as a living entity, but at the same time, he has the greatest respect for the Supreme Person. I can ये think of सब all the sakhas that yes, gopas and yeah. other friends. जैसे उसमें बताते हैं ना गोपी वाली जो भी उनका, कि कैसे गोपीज का एक एग्जाम्पल देते कि कैसे वो कृष्णा को ना ताने भी सुना देती थी। ललिता अच्छा, तो ललिता ना, और बड़े ताने भी सुना देती थी कि तुम ये क्या करते हो, तुम अपने आप को देखो। तो वो अपना भगवान से बहुत प्यार करते हैं, बट वो अपना लेवल, मतलब वो भगवान को अपने आप को फ्रेंड लेवल पे ही देखते हैं, दास से लेवल पे नहीं देखते। तो वो थोड़ा मजाक वगैरह भी कर देते हैं भगवान के साथ। जैसे बलराम जी थे ना, कभी वो शिकायतें कर देते थे या कुछ कुछ चुगली कर देते थे जाके। तो Lalita Sakhi is to be known to be very strict with Krishna. Yes. In the fourth stage, called Vatsalyarati, the fraternal affection of the preceding stage develops into parental affection. At this time, the living entity acts as the parent of God. Instead of worshipping the Lord, the living entity as a parent of the Supreme Person becomes an object of worship for him. At this stage, the Lord depends on the mercy of his pure devotee and puts himself under the control of the devotee to be raised nicely. Such a devotee can embrace the Supreme Lord and even kiss his head. So this is Vatsalya Ras that we know, like Yashoda Mama. In the fifth stage, called Madhurarati, there is a transcendental exchange of conjugal love between the lover and the beloved. It is at this stage that Krishna and the damsels of Vraja glanced lovingly at one another, for on this platform there is an exchange of glances, movements of the eyebrows, pleasant words, attractive smiles, etc. Beside these 5 primary rasas, there are 7 secondary rasas, which consist of laughing, wonder, chivalry, pity, anger, ghastliness, and devastation. For example, Bhishma related to Krishna as a warrior in the chivalrous rasa. Hiranyakashipu, however, experienced an exchange of the ghastly and devastating rasa. The 5 primary rasas
constantly remain within the heart of the pure devotee, and the 7 secondary rasas sometimes appear and disappear to enrich the flavor and tastes of primary ones. After enriching the primary rasas, they disappear. I was not aware about the 7 secondary rasas. ये माता इसी जी में जैसे ऊपर आया था अभी, पहले एक सेकंड हाँ, देखो। मतलब अभी अपन ने पढ़ा, पर इससे पहले मैंने नहीं, कभी इससे पहले अभी आया था ना, राइट? थोड़े इसे ही थोड़ा ऊपर, नहीं, मैं आज से पहले आज से पहले नहीं, इससे what I'm ऊपर, saying is आज इसी से पहले मैं इसी चैप्टर में आया था ना शुरू में, फर्स्ट कपल डेज में। शुरू में आया था हाँ ये 7 rasas. हाँ, ये Then नहीं I'm आए not थे क्या? Mataji, I रासलीला don't ऐसी है वो, कहीं और पढ़ा था क्या हमने? मुझे भी नहीं याद आ रहा माता जी, जैसे हो सकता है। लग रहा है कि जैसे नहीं पढ़ा शायद। ये देखो, ये है। अच्छा, ये तो बार बार यही आ रहा है। हाँ? अच्छा, मैं कहीं और से कंफ्यूज हो रही हूँ। मे बी हमने उसमें पढ़ा था भागवतम में अभी, जब प्रभु जी ने यही बताया था कि ज्यादा मत इसको भी सोचो। हाँ माता जी, आप कुछ शेयर कर रहे थे। मैं नहीं माताजी, मैं शेयर नहीं कर रही थी, मैं बस ये बोल रही थी कि ये 7 रसास जो है सेकेंडरी, इसके बारे में मैंने आज ही सुना, मुझे पता नहीं था कि दे आर आल्सो लाइक और सेकेंडरी भी है इसके अंदर। हाँ, एग्जाम्पल से काफी समझ में आता है, बट ऐसे मैंने कभी नहीं पढ़ा था। वंडर, लाफिंग, पिटी। तो आई थिंक ये हमने कहीं पे 7th चैप्टर में पढ़ा था, पर याद नहीं आ रहा कहाँ। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट। मेरे भागवतम के काफी लेक्चर्स आजकल मिस हो रहे हैं, आगे भी अच्छा। होंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि 7 और सेकेंडरी रसद, 5 प्राइमरी में से कोई एक तो रह गई, और जो 7 है वो उसके ऊपर आते जाते रह सकते हैं, अपीयर एंड डिसअपीयर हो सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज वाले में देखा ना माता जी हमने कि हिरण्यकश्यप वाला भी पैरेलली चल ही रहा था ना, कि हाँ। उनका चल रहा था, फिर हिरण्यकश्यप अपना ये गैस ली और इस तरह से आए, एंड देन भगवान हैज टू किल हिम फॉर दिस लीला, राइट माता जी? हाँ, क्योंकि जैसे कि हिरण्यकशिपु भी बेसिकली वन ऑफ द जय विजयज ही है, राइट? सो है तो वो प्योर डिवोटीज ही, एंड अभी से कि उनका कभी फॉल डाउन नहीं होता, येट कोई कह सकता है कि भाई वो तो कर्स हो गए और उनको तो ये डीमन बनना पड़ा ये वो। लेकिन what are they doing? Actually they are helping in the pastimes of Krishna, like in the Leela of the Krishna, so that the Leela can become very very strong, and Krishna can have a very powerful villain to fight against, and and that Leela will be talked about and remembered for ages and ages to come, and people will engage in Hari Katha as a medium of that Leela. तो ऐसे कोई एरा गैरा नहीं आएगा, इवन जो एनिमी भी बन के आएगा कृष्णा का। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर somebody to do so much austerity and all. So actually that is also happening as a part of Krishna's arrangement only, that these villains come and they are allowed these benedictions by Brahma ji, and then they are not able. हमने अभी थोड़े दिन पहले भी आई थिंक अतुल प्रभु ने बात कहीं पे सुनाई थी, राइट? It's not possible कि ये demons भी ऐसा कर सकते हैं. It is only part of Krishna's arrangement that they can do that too. बात है ना कि when Krishna wants to enjoy his veer ras, that time also he engages with his own devotees only and not person who will be envious. Right. So ऐसा वो play कर रहे हैं role, Hiranyakashipu and all, but these are to set an example for the world. These are to set a very nice like a playground for Krishna to enact his pastimes. तो इसीलिए अमोघ लीला प्रभु भी कई बार लेक्चर्स में बोलते हैं, अगर हमारे जैसा कोई लीला में आ जाएगा तो वो खराब कर देगा लीला को, क्योंकि वो कुछ अपनी लगाएगा बुद्धि और कुछ और करेगा। क्योंकि लोग कई बार बोलते हैं ऐसा क्यों नहीं कर लिया उसने, वैसा क्यों नहीं कर लिया उसने, हिरण्यकशिपु ने या किसी और ने, क्योंकि this is Krishna's arrangement. This is how Krishna has planned this to be done. He is the director and producer and actor and everything of this movie. और ज्यादातर यही होता है माता जी, जो बिल्कुल भगवान को मतलब भगवान को मानते हैं, मतलब डेमीगॉड्स लेवल पे ही मानते हैं, जैसे कि मैं भी किसी टाइम पे ऐसी ही मानती थी। तो अब भी जो लोग मानते हैं ना, वो एक्चुअली भगवान की जितनी भी बनाई हुई चीजें हैं ना, उनको कहते हैं ये भगवान नहीं बनाए हैं,
ये भगवान का ही प्रसाद है, ये तो भगवान ने ही ऐसा किया है, फिर भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, फिर भगवान ने गरीबी क्यों बनाई, फिर भगवान ने बुरे लोग क्यों बनाए। तो आपको एक्चुअली उनके साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना, और वो अपनी ना जीत महसूस करते हैं कि ये जवाब तो दे नहीं पाए, और आपको लगता है कि अब क्या जवाब दें, इनको सुनना इन्होंने है नहीं, और अगर थोड़ा बहुत बोलेंगे तो वो एक्नॉलेज नहीं करते उस चीज को। तो इसीलिए जो ये सब लीला वगैरह भगवान की होती है, जैसे कहते हैं ना कि वो भगवान की रास लीला वाली, उसको भी तो कहते हैं कि अरे इतनी रानियां उन्होंने भी रखी, 2-4 से हम भी कर लेंगे तो क्या दिक्कत है। तो वो एक्चुअली पढ़ते नहीं है, तो पुराना उनको कुछ बेसिक पता नहीं होता, तो उसकी वजह से मतलब उनको बड़ा चैलेंज आता है रिलेट करने में चीजों को। हाँ, मतलब दो अलग अलग बिल्कुल, यू नो, वो दे आर कंपेयरिंग their material mundane life with a very advanced, you know, spiritual transcendental pastime in which Krishna is coming and acting himself. So there is no comparison. जो भी poverty है या जो problems हैं material world की, they are not because of God. They are because you have misused your free will to create problems for yourself, because you wanted, some people wanted more, right? Some people were greedy and were misusing the resources, going way beyond their quota, and destroying mother nature and whatnot. So many things by which, let's say, coronavirus happens, or poverty happens, or unemployment happens, or violence happens, terrorism, right? That is not created by God. It is because people have misused their free will under the three modes of material nature. They are just running astray, मतलब बिल्कुल कोई बिना कंट्रोल के doing things. तो इसीलिए वो चीजें हो रही हैं. और जो ये कंपेयर कर रहे हैं, they are transcendental pastimes in which Krishna arranges in such a way कि देखो गलत काम को कैसे क्या होता है, और मैं कैसे आता हूँ हेल्प करने लोगों की. वो एक अलग. अब जैसे कोई कहे, ओ आजकल लेडीज के साथ इतना गलत हो रहा है, तब क्यों नहीं कृष्ण आते, द्रौपदी के लिए क्यों आए, ये वो, यू नो, लाइक, मतलब कुछ भी नॉनसेंस कहा जा सकता है. इट डजंट मेक एनी सेंस. So they're comparing their mundane material life with a very transcendental pastime, and there is no comparison. You just have to learn the lessons from them and use your free will in this material world to advance towards Krishna. Main बात ये है. Right, बात है. तो एक्चुअली कुछ लोग तो आंसर नहीं कर सकते ज्यादा, नहीं कर सकते ना, क्योंकि फिर वो क्या है, वो आर्गुमेंट, वो बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, और आप करना नहीं चाहते हो. और दूसरा, पहली बात तो ये मानते हैं कि लोग मानते ही नहीं है कृष्णा को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है. वो कहते हैं माता रानी भी है. वो तो उनके, वो जो अपने परिवारों में देख के आई हैं, जिनको मानते हैं, वो एक्चुअली मानते हैं. जैसे जो राम जी को मानते हैं, फिर वो कृष्णा के एग्जिस्टेंस मानते हैं कि हाँ ये भी भगवान है. जैसे हम मानते कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, हम पढ़ रहे हैं, हम बोले अच्छा ये भी उनकी इनकार्नेशन है. उनको इतना नहीं पता, तो उनके लिए राम जी ही उनके परिवार के गुरु हैं, तो वही हैं. किसी के लिए परशुराम जी है तो वो परशुराम जी को पूरी तरह से मानते हैं. किसी के लिए माता रानी है तो वो माता रानी को मानते. तो और फिर हम तो बीइंग पढ़ते, हम ये नहीं बोल सकते ना कि नहीं नहीं माता रानी नहीं है भाई, वो ही है. तो हम बोलते कि नहीं नहीं वो भी है, वो भी डेमी गॉड्स हैं. तो वो कहते कि हमारा काम चल जा रहा है. मतलब हमको जो चीजें मांगनी है हमारी, जब वहां से पूरी हो रहे हैं, तो हमने वहां तक क्यों जाना है. तो ऐसा रहता है थोड़ा ना. तो ठीक है, ज्यादा कुछ बता नहीं सकते. आप बस ये बोल सकते हो कि देखो, ये गाइड कर सकते हो, बस इतना बोल सकते हो कि जो भी ये सारी नॉलेज आ रही है, ये सारी स्क्रिप्चर्स में से आती है. तो भगवान कौन है, या किसको हमें फॉलो करना चाहिए, या गोल ऑफ लाइफ क्या है, या क्या नीड्स भी होनी चाहिए, वो सब स्क्रिप्चर्स में से आप देखो. तो हम स्क्रिप्चर्स फॉलो कर रहे हैं, और मुझे उसमें सारे आंसर्स मिल रहे हैं कि लाइफ को कैसे कंडक्ट करना चाहिए, गोल ऑफ लाइफ क्या है, गॉड क्या है, और गॉड को और कैसे उनकी तरफ बढ़ना है. तो वो आप, और माता रानी का क्या रोल है, ये सब दिया गया है, स्क्रिप्चर्स में दिया गया है. माता रानी कौन है, कृष्णा कौन है, किसका क्या रोल है, कौन क्या है, सब दिया गया है. तो वहां से सारी नॉलेज आती है. आप उसको थोड़ा फॉलो करना शुरू करो. आप सबसे पहले भगवत गीता से शुरू करो, ऐसे बोल सकते हैं. बस भगवत गीता की तरफ डायरेक्ट कर दो लोगों को. अब भगवत गीता क्या है? भगवत गीता, सॉन्ग संग बाय लॉर्ड, भगवान के द्वारा गाया गया गीत इस भगवत गीता. तो इंडिया में कोई भी इंसान भगवत गीता की एग्जिस्टेंस को मानने से मना नहीं कर सकता.
कि आप उसको भगवत गीता क्यों बोलते हो? भगवान के द्वारा गाया गया गीत। किसने गाया वो गीत? भगवान ने। भगवान कौन? कृष्णा। तो भगवान इज इक्वल टू कृष्ण। सो मतलब माता रानी कहाँ से आई इसमें? तो ऐसे आप थोड़ा सा भगवत गीता की तरफ डायरेक्ट कर सकते हो। माता जी, अभी रिसेंटली हम लोग कहीं बैठे थे तो ऐसी बात हुई, तभी तभी मैंने कल का भी मैंने इंसिडेंट शेयर किया था कि वो ऐसे बात कर रहे थे, मैं बैठी थी तब तक मैं नहीं किसी फैमिली से मिल रही थी किसी के घर पे, तो वो ऐसे बता रही, हाँ हाँ मेरी मम्मी आए थे, कौन सा टेम्पल है वो डिट्रॉइट में, जहाँ खाना बड़ा अच्छा मिलता है, अरे अरे कौन सा है कौन सा है कौन सा ऐसे करके ना। तो इस्कॉन मैं था? चुप बैठी रही, गोविंदा? मैंने कहा देखती हूँ अगर ये कुछ नेगेटिव भी बोलते हैं, मैं मतलब देखती हूँ ना, क्यों मेरे को लगा कि मैं आज पहली बार किसी से मिल रही हूँ, वो भी किसी और के गेस्ट से, मैं एकदम खबरदार कुछ बोला तो मैं चुपचाप बैठी रही। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा खाना मिलता है भाई, वो तो मेरी मम्मी इंडिया से आई थी, उन्होंने कहा था स्पेशली मुझे तो वहां ले जाओ, उनका खाना बहुत अच्छा होता है। तो फिर वो लेके गए, तो फिर जो मेरी फ्रेंड थी जिसने मेरे को इंट्रोडक्शन उनसे इंट्रो कराया, तो उन्होंने कहा कि हाँ 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 ये भी ना, उनसे सोचा इससे पहले कुछ और बोलने का, हाँ ये फॉलो करती हैं इसको ना, ये कि अच्छा 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 वो अच्छा अच्छा, फिर आपको तो बड़ा और लग रहा होगा हमारे बीच बैठ के, मतलब आपको तो लग रहा होगा हम कहाँ आ गए, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा। मतलब उनको भी तो पता है कि और लगना चाहिए। हाँ वो कहते, जब वो क्योंकि खाना बना था ना तो मैंने नहीं खाया, मैं एक सैलेड बना के ली थी बस, मैंने ना उसी में से कहते, वो कहते अरे भैया आप हम तो शास्त्रिक लोगों के बीच बैठ गए, कहाँ आ गए आप दुष्टों के बीच ऐसे ऐसे छेड़ने लगे। मैं कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं कहा आप बहुत ज्यादा गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं हम सब जानते हैं, हम तो सब जानते हैं। मैंने कहा इतना मतलब मेरे को बुली कर दिया उन्होंने, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ये तो अब चलेगा ही। कितने लोग ऐसे बोलते हैं, जब आप बोलते हैं ना भगवत गीता से पढ़ो, हम्म। तो वो लोग बोलते हैं क्या भगवत गीता में कैसे बिलीव करे, कोई एक बोल रहा है उसको पता नहीं कोई कैसे टेलीपैथी से उधर दूसरा सुन रहा है, मतलब देख रहा है और वो किसी और को बोल रहा है, वी डोंट बिलीव ऑन थिंग्स व्हेन इट इज नॉट डायरेक्टली। हम लाइक अभी और स्पोकन इससे टू ज्यादा यू, हाँ आपको आके बोली जाए पहले। तब वही तुमसे डायरेक्टली बात करेंगे। पर ऐसे भी हुआ था माता जी, मेरे को किसी ने बोला कि अरे अच्छा तुम ये कहते हो कि अच्छा ये भगवान है, किसने देखा भगवान को, तुमने देखा है? मैं कहा कि नहीं हाँ मैंने भी नहीं देखा। नहीं आप मैंने बोलो बोला हाँ। नहीं मैंने कहा नहीं मैंने भी नहीं देखा। कि फिर कैसे मान ले कि ये भी करना, मैं कहा देखो अब आप यहाँ रहते हो है ना, तो कहते हैं हाँ हम रहते तो ही हैं। मैं कहा अब देखो आपके फादर से आपके बच्चे मिले हैं, लेकिन आपके फादर के फादर को आपके बच्चों ने तो देखा ही नहीं। तो मैंने कहा क्या ये आप मान लोगे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे कभी? तो मैं कहती हाँ। आपने अपने दादाजी को या दादाजी के दादाजी को नहीं देखा, तो आप तो विश्वास नहीं करोगे ना, फिर हम कहाँ से आए, फिर तो ये मुश्किल पॉइंट है समझना। या वेरी नाइस। कि नहीं हम तो बिल्कुल मानते हैं। मैंने कहा तो जो आप ये मान सकते हो तो आप ये क्यों नहीं मान सकते? हाँ यही हम लोग रक्षा माता जब पिछली बार हम यही बात कर रहे थे कि उनसे भी लोग पूछते हैं जो देखा है, हम तो ये तो खैर बड़ी बेसिक सी बातें आती है जो लोग अपने सेंसेस पे बिलीव करेंगे, हमें डायरेक्टली बोलोगे तो हम समझ आएगा, हम देखेंगे तो मानेंगे ये वो। तो यही बोलो कि भाई जैसे अब आपके बच्चे को या आपने कभी महात्मा गांधी को देखा, लेकिन आप महात्मा गांधी को मानते हो कि नहीं? उन्होंने आजादी दिलाई थी या नहीं? तो मतलब तो फिर कृष्णा ने जी भगवत अपने गीता। हिटलर वाला पॉइंट भी बोल रहा था, वो बहुत अच्छा था, मैंने लिख रखा है। नेक्स्ट हाँ कौन टाइम सा बोल। माता जी बताऊं? क्योंकि मैं तो काफी अक्सर इस आर्ग्यूमेंट में पड़ी जाती हूँ। अच्छा, मुझे भी हिटलर बताओ। का कुछ यही बोला था मैंने कि भाई हिटलर को किसने देखा है, लेकिन फिर भी उसने क्या इतना किया ये सबको पता है, राइट? क्या बोला था माता जी? मैंने यही कुछ बोला माता जी आपने कहा था कि टू नो हाउ बैड हिटलर वाज आई डोंट हैव टू मीट हिम पर्सनली, था। हाँ। आई ऑलरेडी नो, एंड हाउ डू आई read about him. हम्म। Similarly, if we read things about Prabhupada, we know what he's done, how he's done. हम्म। तो उन्होंने जिस चीज के बारे में लिखा है, जो कि ऑब्वियसली उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ ट्रांसलेट जो किया है, वेद तो हमारे पास पहले से ही है, तो उसमें मैं क्यों नहीं बिलीव कर सकती? दैट वाज अ क्वेश्चन। लाइक उन्होंने कहा था ना हाउ आई, मतलब मेरी जो अभी जो नई जो देरानी है ना, जिसकी भी शादी एक हफ्ते में, तो मैं बुक थी मेरे पास में, तो वो ऐसे बोली थी हाउ डू यू बिलीव दिस, मैंने ऐसे कर रही वो मुझे बोलना नहीं आ रहा था, तब मैंने आपसे पूछा था। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब ये तो ऐसे ना बेसिक चीजें हैं जो नॉर्मल लोग हैं वो पूछेंगे ही कि हमने किसने देखा है, जैसे अगला जन्म, जैसे मेरी मम्मी ने एक बार बोला था अगला जन्म किसने देखा है। तो भाई जो चीजें देखोगे उसी को ही मानोगे, तो बहुत चीजें नहीं मान पाओगे क्योंकि हमारी सेंसेस तो बहुत डिफेक्टिव हैं। अब मैंने तो उनको सीधा एग्जांपल दिया, आप तो रोज अल्ट्रासाउंड करते हो।
तो आपको अल्ट्रासोनिक रेज दिखती हैं क्या? देयर साउंड वेव्स एक्चुअली। तब कोई मान सकता है, आप किसी जानवर, किसी आदमी को, गवार को, गांव वाले को जाके बताओ कि ये साउंड वेव्स हैं जिनसे हम तुम्हारा बच्चा देख रहे हैं पेट के अंदर, वो मान सकता है कभी? मतलब कि कितनी, पहले तो नहीं देख सकते थे, पहले कभी कोई मान सकता था कि बच्चा पेट के अंदर है तो भी उसको देखा जा सकता है ऐसे? तो हर चीज जो देखी जाती है, या डॉग विसल होती है, जैसे डॉग विसल का एग्जांपल आता है, आप तो नहीं सुन सकते वो वाली फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर्स, तो इसका मतलब क्या है कि वो, लेकिन डॉग सुन सकते हैं। तो कोई चीज जरूरी नहीं कि जो देखी जाए, सुनी जाए, उसी पे ही बिलीव किया जाए, ऐसे ही। वो उस बुक में भी पढ़ा था ना माता जी, अपन ने परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट नहीं, नॉट परफेक्ट क्वेश्चन, आई गेस साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइज, उसमें था ना, टू err is human, like we make mistakes and our senses are so imperfect. उसमें प्रभुपाद ने डिस्क्रिप्शन दिया है अबाउट ऑल सेंसेस, एक सेंस को पकड़ के बताया है कि ये भी डिफेक्टिव है, ये भी डिफेक्टिव है, ये भी डिफेक्टिव है। जैसे Then कि how are we कुछ relying मीठा so खा much on लो, our senses? बहुत मीठा हाँ, खा लो और उसके बाद चाय पियो तो कितनी फीकी लगेगी, है ना? वही, हाँ, then you have टेस्ट to take इफेक्टिव है। something, palate change करने के लिए कुछ नमकीन खाते, तो you don't have हम्म निशा माता जी ने लेक्चर शेयर किया था ना, जिसको अभी अमोघलीला प्रभु ने होस्ट किया था, जो फैमिलीज, शादी और फैमिली का था। हाँ, गृहस्थ पे था। उसमें भी प्रभु जी ने एक बात बोली, आई डोंट नो, ये एक अपराध की तरह ही, वैसे उन्होंने ये बोला था कि ये अपराध नहीं है, मतलब आई एम सेइंग दिस बोल्डली, कि बीच में रिसेंटली अभी क्या, मतलब इस्कॉन में काफी टाइम से क्या हो रहा है कि जब, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिसको भी हम सुधार सकते हैं, जिसकी लाइफ भी हम अच्छी कर सकते हैं, हम अच्छी करें। हरे कृष्णा। Okay. ओके So I think we can finish this chapter next time maybe, huh? यस माता जी, थोड़ा सा ही रह गया, ज्यादा कहाँ नहीं। से रह गया, इसको याद कर लेते हैं, कहाँ रह गया? Examples of शांत भक्तास और devotees. Okay. तो हाँ, I think next time खत्म हो जाएगा, yes. शांत भक्ता। ठीक है, देखते हैं, we'll try again. माता जी कैसे इसमें वेदा बेस में बुकमार्क कैसे लगा सकते हैं? लगा सकते हैं माता जी मेरे पास बुक है। अच्छा ठीक है, मेरे पास, हाँ, जैसे इसमें भी कुछ होगा माता जी, बट मुझे पता नहीं है। I'm definitely sure माता जी, पर मैं तो मतलब बिल्कुल ही, मेरी कंप्यूटर्स की जमती ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, चलिए करेंगे फिर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक कभी, जब भी आप फ्री हो सब ना। चलिए, ठीक है। 28 के बाद में एक हफ्ता तक आयल भी थोड़ा सा ज्यादा ही अनअवेलेबल। हाँ माता जी, हम लोग भी अवेलेबल नहीं है एक्चुअली फॉर 2 वीक्स ऑलमोस्ट, 12 तक आई थिंक, तो बट ट्राई करेंगे जब भी आप फ्री होंगे, या उसके बाद, उस वीक के बाद, है ना? हाँ माता जी। चलिए, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय।